we have I think 1.5 hours to finish. So in 1 hour we will finish the discussion. So that in next half hour we can prepare our report for presentation, and everybody should get a chance. I will request to each one to speak one by one and stick to the issue, technical issues only. Other issues may be raised in other sessions. So we should stick to the session and topic, sorry, and everybody should get a chance. Okay, so our topic is complex problems and simple solutions. So we have to underline what are the complex problems on priority wise. There may be so many problems which we cannot discuss every problem here. But we should prioritize what are the main complex problems and what are their solutions. So let me introduce for my help. I am lucky. I have Mr. Singla with me. He is retired EMC. He was chairing technical committee which finalized specifications for financial support to implement. So he will also be very useful to us. So I think we can start from this side. मैं DS पवार हूँ सोलन से. हमारा MSP लगा हुआ है एंटीना हमारा, तो वो वहीं पे लगा हुआ है कैंपस के अंदर. और कैंपस शिफ्ट करना चाहते हैं. हमारे पास पहाड़ी के ऊपर है, तो वो शिफ्ट करना है. चेंज ऑफ लोकेशन. हाँ, चेंज ऑफ लोकेशन. उसके बारे में चेंज ऑफ लोकेशन इज एन इशू. सो और किसके साथ है चेंज ऑफ लोकेशन का इशू? केवल टावर लोकेशन चेंज करने का. टावर लोकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिल्ली विश्वविद्यालय रोहित उपाध्याय. क्या एंटीना का जो हाइट वाली पहाड़ी है या तो कुछ हो सकते हैं ताकि हम 8-10 किलोमीटर का जो टेक्निकल लाइसेंसिंग पॉलिसी इशू आ जाएगा. तो स्टूडियो से क्या हम एंटीना अपना यस वो लगा सकते हैं, बट आप कैसे लिंक करेंगे वो भी इशू आएगा. हाउ विल यू लिंक स्टूडियो एंड योर एंटीना? अगर केबल लंबा रखेंगे तो लॉस होगा, आपकी पावर सारी लॉस हो जाएगी. तो ट्रांसमीटर या वाईफाई या कुछ वाईफाई से आप कर सकते हैं. उसके लिए तो आपको कोई लाइसेंस की परमिशन की जरूरत नहीं है. तो ये भी एक इशू, इसको अभी लिख देते हैं. अगर एंटीना एंड स्टूडियो दोनों डिफरेंट प्लेसेस पर हैं तो उसका क्या उसका सॉल्यूशन है, क्या ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं? तो इससे क्योंकि हम आपदाग्रस्त एरिया में ही करा और वहाँ से तीन तरफ ऐसा ब्लॉक हो गया, एक तरफ जा रहा है 8-10 किलोमीटर, बाकी कवर नहीं होगा. सातवा तो चाहिएगा, एंटीना तो एक जगह लगाएंगे. यस सर. टेल योर नेम प्लीज. माधुर्य नेगी, मंदाकिनी की आवाज. नेगी सर, आई हैव अ रिलेटेड क्वेश्चन. जहाँ तक STL का सवाल है, STL ट्रेडिशनली जाता था. अभी नाउ वी हैव अ D-license spectrum which is 2.4 is not defined in Wi-Fi. तो अगर हम कहते हैं कि हम STL लगा रहे हैं तो पर रखना चाहिए, but per se STL is not allowed and many radio stations have this concern that how. Actually, I would say that some experiment, in fact, it is working also in Kolhapur. At some other stations also in All India Radio. Between studio and transmitter, that link. So they have made and very cheap, which is permissible, no license, anything is required. In fact, you can put, and with remote, you can see that operation is okay. Because between that transmitter, you can't post anybody. Right. So you need not send anybody there. So through camera, you can even get the whole image. I think that you can also try to follow that. No, but can we consider that legal? Because that is legal. That is legal. If companies are there, they will supply you at particular frequency. So that is very good. In fact, our regular STL link was costing very high, and this costs maybe 1 or 2 lakhs. That's all, with camera, everything. You need not post anybody there, and maybe through remote you can control that. who supplies?
Well, I don't know the company. You can find out from All India Radio Kolhapur. Sir, this is Dr. Shiva Shastri from Antarwadi, Gulbarga, Karnataka state, sir. I suppose you know, sir, in your ministry, you have some particular terminology, sir. For example, PCI, PCOL, LOW, like this, you know, we cannot understand. Some of the terminologies have to be explained clearly. And you know, some this with related to GOPA itself cannot be understood by many. What is the full form? What I request to your ministry is full form should be written. I think it's not technical, so let us stick to our topic. WR has several definitions. If something is left, we will define it also. The full form should be there. Yes, full forms are there, but it's not a technical issue. Let us not include this in our, because our topic is technical problems. Yeah, these are not problems. Yes. Okay. Technical to understand. Sir, myself is Krupa Sagar from Antarwadi, Gulbarga. In our station, our program, it is not come in radio. रेडियो में प्रोग्राम नहीं आता, मोबाइल में प्रोग्राम नहीं आता, रेडियो में प्रोग्राम क्लियर आता है. मोबाइल इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? After how much distance you are listening? 5 kilometers, 4 kilometers. So actually for community radio, that polarization is not circular. If you are moving, then you may not get the signal. But if you are stationary, you may get. And once your link is off, then if you are in a car or vehicle, the receiver won't catch that signal. So this is the problem of technology, not your station. So what he is asking now, in the transistor, it will be very clearly listened. Whereas in the mobile set, it will be. Yes, I am answering because that transmission for community radio is, there is a terminology called polarization. There are 3 kinds of polarization: horizontal, vertical, and circular. So for private FM and All India Radio, they are using circular polarization. Okay, but community radio is using vertical polarization. If you use circular polarization, your power will be half, because half power will go to horizontal and half will go to vertical polarization. So your coverage will be reduced. So for community radio, this problem will be there. If you are in a vehicle, your signal may not be received. This is the problem of the technology. Okay. This will be a problem for unsolved problem. मैं कृपा शंकर श्रीवास्तव गोपालगंज बिहार से. मेरे यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम ये है, बेबल कंपनी का हमारे यहाँ ट्रांसमीटर लगा हुआ है कोलकाता का. 6 साल पहले लगाते हैं तो मेरा रेडियस 2 किलोमीटर हो जाता है. और जब टीवी वाला एंटीना हम लोग लगाते हैं उसमें तार टूट गया रहता है, अपने से चढ़ के टावर पर लगा लेते हैं तो उसका 5 किलोमीटर हो जाता है. तो एक तो क्या ही डिफरेंस है. वो लोग बोलता है कि टिलियन ये एंटीना है, इसका भी 5 किलोमीटर जाना चाहिए, 7 किलोमीटर जाना चाहिए, जबकि टीवी वाला हम लोग जो पाइप खरीद के लगाए हैं उससे जो है 10 किलोमीटर चला जाता है. पहला प्रश्न. दूसरा इसी से जुड़ा है कि जो केबल लगा हुआ है, जो तार लगा हुआ है ट्रांसमीटर से टावर तक जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि 12 पॉइंट यानी 12 पॉइंट जो है लॉस हो जाता है. आपको 50 पावर का मिला है वाट का, और वह जो है 38 जो है निकल पाता है. तो ऐसा कोई केबल है कि 50 और वो 38 पर चला जाता है. वो और ऐसी केबल है, बट उसका आपका कॉस्टिंग ज्यादा आएगा. आपको अच्छी क्वालिटी कॉपर वायर को मोटी केबल आपको लेनी पड़ेगी. ठीक है, वो तो आपके बजट पर डिपेंड करता है. अगर आप लो कॉस्ट सेटअप लगाना चाहेंगे तो लॉस तो आपका ज्यादा होगा. और तो 12 पॉइंट का आता है लॉस हो जाता है. हाँ, वो सबका हर केबल का लॉस डिफाइन होता है, उसमें कितना लॉस होगा. हर केबल में लॉस होगा. ऐसी कोई केबल नहीं है जिसमें कोई भी लॉस नहीं होगा. बट लॉस कुछ केबल ऐसे हैं जिनमें बहुत कम होता है, कुछ ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा होता है. तो अभी आप हमने जो स्कीम है फंडिंग की, उससे आप अच्छी केबल ले सकते हैं. जी जी, ठीक है. और एंटीना let me further say anything. See, एक तो जैसा अभी बताया कि हमने अपलोड किया है स्पेसिफिकेशन. अगर आप उसको भी देखेंगे, 2 तरह की स्पेसिफिकेशन दी है केबल के लिए. एक 1/2 इंच का है, एक 5/8 इंच का है. जी जी.
तो जितना मोटा केबल आप लेते जाएंगे कॉस्ट बढ़ती जाती है, लेकिन लॉस कम होता जाता है। हमने आधा इंच और 5/8 इंच, और जो मोस्टली हमने जो नोटिस किया वो 1 सेंटीमीटर का केबल लगा है मोस्टली जो जगह में लगा, उसका लॉस और ज्यादा होता है। तो देखिए इसमें एंटेना का भी आपका पोलराइजेशन, जब आपने टीवी का एंटेना लगाया होगा तो हो सकता है कि वो एक डायरेक्शन में जा रहा होगा सिग्नल, आपने नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो रियल एंटेना जो लिया होगा प्रॉपर, उसमें लगभग 120 डिग्री तक अच्छा सिग्नल मिलना चाहिए ना, लगभग 300 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट चारों ओर आपको अच्छा सिग्नल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक डायरेक्शन में मिल गया दूसरी जगह बिल्कुल नहीं मिला है। वो एंटेना का भी रोल उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उसने बताया कि इटालियन एंटीना है, एंटेना अच्छा होगा, लेकिन एंटेना का माउंटिंग भी देखना है उसका, क्योंकि माउंटिंग अगर प्रॉपर नहीं है या उसका मैचिंग नहीं है केबल के साथ, वो सब चीजें आपको देखना है। उस फ्रीक्वेंसी के लिए वो मैच किया गया कि नहीं, आपकी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उस पे वो एंटेना मैच किया जाना चाहिए। अगर उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा है, एक तो वो सबसे गड़बड़ ये होती है, रिफ्लेक्शन ज्यादा है तो आपका ट्रांसमीटर भी जल्दी खराब हो सकता है। तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है, जब आप लगाते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर। इसमें देखिए हमारा जो मेन इशू अभी तक किसी ने रेज नहीं किया है, स्पेक्ट्रम का जो है, स्पेक्ट्रम मैपिंग, फील्ड स्ट्रेंथ मेजरमेंट, और टेक्निकल कमेटी ने भी ये फील किया था जब हमने कुछ स्टेशन विजिट किए कि कौन से इक्विपमेंट कम्युनिटी यूज कर रहे हैं, क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स उनकी हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो ट्रांसमीटर, केबल एंड एंटीना, इन तीनों में प्रॉब्लम है। और ये तीनों ऐसी प्रॉब्लम है, आप एंटीना ऊपर जाके नहीं देख सकते हैं उसका कनेक्टर उसने कैसे लगाया है, उसकी ट्रांसमीटर, केबल और एंटीना तीनों की मैचिंग है या नहीं है, टिल्ट तो नहीं हो गया है। तो इस तरह के इशूज हमें हाईलाइट करनी चाहिए। इशू ये है कि जो आई थिंक हमें जो परचेज करते हैं ट्रांसमीटर या एंटीना, तो उसके अंदर इंक्लूड करें एक तो आफ्टर सेल सपोर्ट जो कितनी देगा वो, और उसको आपको फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करके देगा, इंस्टॉल करके ट्रांसमीटर ऑन करके आपको बताएगा इस डायरेक्शन में इतना आपका सिग्नल यहाँ तक जा रहा है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, चारों डायरेक्शन में आपको मैपिंग करके दे। आई थिंक ये हमें एक इशू रखना। हाँ सर, एकदम अच्छा, एक तो कम्युनिटी रेडियो कॉल को ट्रांसमीटर रख सकता है, तो आप बता सकते हैं क्या एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कितना ट्रांसमीटर आप ले सकते हैं? हम लोग एक ही तो रखे हैं, आप ले सकते हैं, हम लोग का है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। One more point. We are running a station. Now we want to transfer the new equipment. We want the new equipments. So as per we want to replace our equipments. And because reflections be there, not reachable. So previously 49 volts will be there. Now it will come lesser the voltage. So we want to already replace the cable. Now it's around 42 watts. Then it is a position we have to change because already we went for 5 years. So now we want to change the equipments. So we are means transmitter or studio equipment? Studio equipments. We want studio including the antenna. What is the problem? You can change equipment. Not a transmitter. We want to change the antenna. Okay. Because we are temporarily putting another antenna, cable as well as the antenna will be replaced. So if we go for a new set of equipments, so is it matched with the old one, or we have to go for entire antenna, transmitter as well as a cable? No, I think antenna आपको उस frequency का लेना होगा। You have to purchase the antenna which matches your frequency. Yes. Okay. Am I right? Which is tuned your transmitter frequency. The transmitter frequency, antenna, then cable as well as transmitter. Transmitter and your antenna should be matched to your transmitter frequency. Okay. And antenna as well as cable connect to replace. Yes.
survey or something. We want rather than from area community radio. सर मैं यहाँ बोलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं चेंज करना चाहूँ ट्रांसमीटर के लिए कोई परमिशन लेना पड़ेगा या नहीं काम हो गया उसका रीजन आपको देखना होगा। वही जो मैंने पहले आपको बताया था फ्यूज स्ट्रेंथ मेजरमेंट एक तो देखना होगा आपका केबल लॉस तो नहीं हो रहा है, पावर रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही है, और एंटीना और आपका जो फ्रीक्वेंसी का वो मैचिंग है या नहीं है। वो पहले आपकी रेमेडी वो पार्ट है वो पहले रेक्टिफाई करना होगा उसका, बिकॉज ऑफ विच रीजन योर कवरेज हो सकता है आपका मास स्पीड भी होगा, एक साइड जा रहा है या पूरा ओवरऑल कम हो गया है, ये भी देखना पड़ेगा। सर पहले तो 12 किलोमीटर के आसपास रेंज था, 10 से 12 किलोमीटर, अब 8 के आसपास 7-8 के आसपास हो गया रेंज। तो इसके लिए मुझे क्या करना, कोई एप्लीकेशन इसी को लेना पड़ेगा या आपको कुछ नहीं करने की, सिर्फ आपको चेक आपका ट्रांसमीटर और वो मैचिंग कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गया, ट्रांसमीटर का पावर कम तो नहीं हो गया है, किसी कारणवश उसके कंपोनेंट जो होते हैं ट्रांसमीटर में विद पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़े से मिसअलाइन हो जाते हैं तो पावर रिड्यूस हो जाती है। तो आपका 50 वाट की बजाय 40 वाट देने लगा हो तो आपको वो देखना है। फिर मैचिंग एंटीना केबल का मैचिंग का जरूरत नहीं है, वो तो एक फिक्स्ड है, लेकिन एंटीना थोड़ा मिसमैच हो गया हो या जैसे इन्होंने बताया कि थोड़ा मिसअलाइन हो गया हो, टॉवर टिल्ट थोड़ा कर गया हो, तो उससे क्या होता है कि वो आपका पोजीशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से, ऐसे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है उसमें। Sir, myself Lokesh Sharma from Apno Radio Vanastali, Rajasthan. My including audio mixer, phone console and transmitter. Now I want to know when we will return our old equipments to the vendor. Will he consider the cost of these old equipments while he will quote for the new equipment? So it depends on how you bargain with vendors. I mean, is there any directions from the ministry to तो वो उसका आपका इक्विपमेंट लेते हैं या नहीं लेते हैं वो तो स्कैम है उसके लिए। इनमें से यू थ्रो इट, आई विल सप्लाई ओनली द न्यू इक्विपमेंट। अगर कोई बाईबैक पॉलिसी वो देते हैं देन आप उसको सोच सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप फॉर एग्जांपल इफ यू बाय मोबाइल न्यू मोबाइल, वो पुराना मोबाइल तो आपसे नहीं लेता है। तो ये तो आई थिंक नए रेडियो स्टेशन एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, ये जो ट्रांसमीटर है आप एज इट इज मार्केट में सेल नहीं कर सकते क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी का अपना लाइसेंस है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे ही डिस्पोज ऑफ करें। नया रेडियो स्टेशन कोई आ रहा है, हाँ ट्रांसमीटर तो एज पर WBC लॉ पर आपको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। स्टूडियो इक्विपमेंट आप बेच सकते हैं, देख सकते हैं या उनको डिसमेंटल करके यूज कर सकते हैं। The next is about this, matching. While we are purchasing the new transmitter, now the question is because we have the Weber transmitter and their cable and antenna. Now we will purchase the new transmitter. Then will it match or not? तो अगर एंटीना आपका फ्रीक्वेंसी से है, नॉट विद द मेक वेबल का है, बेल का है या बेसिक का है, उससे नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी आप उसकी एंटीना की ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उसको वो करना है क्यों, देन इट विल मैच विद एवरी ट्रांसमीटर। देखिए एक चीज मैं और इसमें एंटीना के बारे में कहना चाहूँगा, एंटीना की कॉस्ट बढ़ जाती है अगर उसमें एक फैसिलिटी होता है कि आप थोड़ा ट्यून कर सकते हैं। जैसे आप रेडियो को ट्यून करते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, एंटीना भी ट्यून हो जाता है। मान लो आपकी 107 पॉइंट कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, आपका एंटीना 107 पॉइंट उस फ्रीक्वेंसी पे मान लो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कम ज्यादा है, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे वो अच्छा आता है, लेकिन उसको आप अलाइन कर देंगे, थोड़ा ट्यून कर देंगे, तो ऐसे थोड़ा एंटीना कॉस्ट बढ़ता। तो आपने ये किस टाइप का लगाया है, नहीं तो आप उस एंटीना को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी के अनुसार। मान लो किसी कारणवश आपकी फ्रीक्वेंसी जो है
ट्रांसमीटर की चेंज कर दी WPC ने आगे लाइसेंस देते हुए, तो अगर आपका एंटेना नहीं है तो आपको एंटेना बदलना ही पड़ेगा, आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये सब फैक्टर है, लेकिन ये सबसे कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ट्रांसमीटर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का आपको आएगा, जब आप ट्रांसमीटर लगवाएं आप ये देखें वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, उसमें कितना रिफ्लेक्शन है वो आपको मेजर करके देगा। उसमें अगर आप देखें एक मीटर होता है फॉरवर्ड पावर एंड रिवर्स पावर, ठीक है ना, तो रिवर्स पावर शुड बी मिनिमम, वो एक उससे कम होनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो थोड़ा पास करिए बिकॉज़ वी आर गोइंग स्लो। हमारा जो रेडियो है पहले वो 10-12 तक पहुंचा था, 8, 9 और 7 के करीब रह गया। मुझे लगता है कि अब जो बिल्डिंग्स है, क्योंकि हमारा रेडियो 2006 से चल रहा है, अब जो है नई नई बिल्डिंग बनी है, हाई वोल्टेज बिल्डिंग जो है उनकी वजह से रेंज कम हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या एंटीना की हाइट को बढ़ाने का प्रोसीजर कुछ है? नहीं, ये तो पॉलिसी इशू में आ गया, फिर टेक्निकल इशू नहीं है, अभी तो कोई प्रोविजन नहीं है, 30 मीटर मैक्सिमम है। आई थिंक एक जो इससे एक इशू निकल के आ रहा है वो ये होना चाहिए कि आप एक फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए स्टेशन के पास आफ्टर 2-3 इयर्स, या जब भी उसको नीड फील हो कि मेरी पावर को मेजर किया जाए कितनी एक्चुअल ब्रॉडकास्ट हो रही है। आपका ट्रांसमीटर तो शो करता है बट दैट इज नॉट एक्चुअल पावर, दैट इज ए कैलिब्रेटेड पावर। तो उसका कैलिब्रेशन अगर कुछ खराब होता है देन वो हो सकता है आपको 60 वाट पावर दिखाएगा बट एक्चुअली इट में भी 45 वाट। तो एक जो वाट मीटर होता है थ्रू वाट मीटर वो सब आई थिंक नहीं रख सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली आइटम भी है। तो एक फैसिलिटी अगर अवेलेबल हो जो आपकी रिक्वेस्ट पर जाके उसका आपकी जो सिस्टम पावर निकाल के आपको बताए इतनी आपकी पावर है इंक्लूडिंग केबल लॉस एंटीना गेन, तो एक फैसिलिटी आई थिंक हम कर सकते हैं। ये एक रिकमेंडेशन हम अपनी तरफ से दे सकते हैं कि एक फैसिलिटी ऐसे अवेलेबल हो स्टेशन के पास जिससे वो रिक्वेस्ट कर सके, एक कोई एजेंसी प्रोवाइड करे या कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके कि उसका सिस्टम पावर कितना ब्रॉडकास्ट हो रहा है एक्चुअली एंड वेयर इज द फॉल्ट, ताकि उसको वो रिप्लेस कर सके उस पर्टिकुलर चेन में जो भी केबल है या एंटीना है या ट्रांसमीटर। तो आई थिंक ये एक हम रिकमेंडेशन लिख सकते हैं दैट दिस फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल टू कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मैं अशोक शुक्ला हूँ, रेडियो मैनेजमेंट से आया हूँ। एज सच टेक्नोलॉजी अगर हमारा ट्रांसमीटर किस नेक का लगाया जाए और वो सिलेक्शन बहुत सही था हमारा, शायद इसकी एक वजह हो सकती है। यहाँ पर मेरे 2 क्वेश्चन हैं कि किसी भी इक्विपमेंट की एक सर्टेन लाइफ होती है, तो ट्रांसमीटर आप लगातार 5 साल तक चला रहे हैं तो उसकी लाइफ क्या है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा था कि स्टूडियो और ट्रांसमीटर का जो इंटरलिंक केबल है या और भी तरीके हो सकते हैं, ये कौन कौन से हो सकते हैं एक जनरल लाइफ तो आई थिंक सर इधर, क्योंकि जैसे कि सऊदी ने भी कहा था कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए कुछ फंड है, तो क्यों ना जिनके 5 साल बोझ के ट्रांसमीटर के उन्हें फाइंड आउट करके नया नहीं, नॉर्मली ट्रांसमीटर का लाइफ 10 साल तो होना चाहिए जी, और बल्कि जो हम वीडियो में देख रहे हैं वो तो 20-20 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और ट्रांजिस्टराइज्ड इक्विपमेंट होता है उसमें नॉर्मली कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, लाइफ बहुत अच्छी होती है। सिर्फ उसमें 2-3 फैक्टर ही आपको देखने होते हैं कि लाइफ बढ़ाने के लिए। एक तो टेम्परेचर थोड़ा उसका लो रहना चाहिए, दूसरा है कि डस्ट फ्री होना चाहिए, और तीसरा आपको देखना है कि वोल्टेज जो है पावर सप्लाई है वो स्टेबल रहे। मे बी अगर आप यूपीएस लगाते हैं या कोई ऐसा सिस्टम लगाते हैं तो ये 3 फैक्टर अगर आप कंट्रोल करते हैं, लाइफ इज वेरी लॉन्ग है, इट शुड नॉट गिव एनी प्रॉब्लम, इनफैक्ट फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए, सालों साल शुड नॉट फेल एट ऑल। लेकिन हम अगर उसको 10 साल मान के चले कम से कम इट शुड वर्क। बाकी ये है कि जैसा कमेटी ने रिपोर्ट दिया है कि आप एक ट्रांसमीटर है तो स्टैंड बाई दूसरा रख सकते हैं कि ताकि वो अगर फेल हो जाता है, रिपेयर करवाने दिया है, आपका प्रोग्राम बंद ना हो, तो इसलिए स्टैंड बाई दूसरा जो है आप कर सकते हैं। ऑटो चेंज ओवर भी है उसमें,
एक फेल हो गया ऑटोमेटिकली दूसरे ट्रांसमीटर में जा सकता है। Is humidity also a problem? Because some stations on the seashore have been reporting. Yeah, that is a big problem again. So in fact, if it is salty weather, that is still further problem. Not only with the transmitter, but with the antenna also. Antenna connection, so it's a big problem. Corrosion and disconnection is happening. Corrosion and disconnection. Yeah, corrosion is a big problem. I am telling. For example, at Dwarika, you might have seen Dwarika is the worst place where we have found our both radio and TV. They are facing this problem. Even the tower has started falling. The corrosion is there. Lot of corrosion. Second question, sir. So how to overcome such solution also? How to overcome the corrosion? Because See, every 2 years proper air conditioning. See, for corrosion, number one, of course, as I have told that if air conditioning is proper, you have some temperature control, humidity control, and you can basically close it completely. Need not open again and again. And similarly for antenna, which we found, most of the antennas which you might have seen, they are not having good quality material. So copper and all that should be there. They are not that good quality materials. Sir, you are a technical person, you can make out whether it is good or bad. But आम आदमी हम लोग No, that's why I am saying. चलिए भैया बोलिए। सर रेडियो इलाहाबाद से हमारे पास वेबल से पहले WDF का ट्रांसमीटर था, तो वो सही काम नहीं कर रहा था, तो वेबल दे दिया। तो अभी वो पड़ा हुआ WDF का यूजलेस, तो उसको हम अगर जो दूसरा लेना चाहें तो उसके लिए क्या? नहीं, आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अभी वो बरसाती खाली रहे थे। वो सिर्फ जो जिसके पास डीलर लाइसेंस है वही इक्विपमेंट, ट्रांसमीटर इक्विपमेंट किसी दूसरे को बेच सकता है। दूसरा परचेज तो हम कर सकते हैं। हाँ, दूसरा जो आपके पास पहले था और अब है, दोनों में आपके पास लाइसेंस है। हाँ, लाइसेंस तो है। हाँ, तो आप स्टैंड बाई रख लीजिए उसको। नहीं, वो WDF वाला काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है तो आपके लिए वेस्ट है। फिर वो आप उसको किसी को नहीं दे सकते हैं। आप उसको वापस रिटर्न कर दीजिए या रिपेयर करवा दीजिए उसको। सर, I am from PK Datta from Radio Station Odisha. हमारे के साथ मरामती कर सकते हैं, उसको बना सकते, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। लेकिन ये जो ट्रांसमीटर एंटीना के बारे में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एंटीना के बारे में हमको ने जो इंजीनियर है उनका हम कॉन्टैक्ट करें तो हमको कमर्शियल डील करते हैं कि आप जैसे 5,000 10,000 दो एक विजिट में। तो इसीलिए कुछ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ रिसोर्स पर्सन है कि स्टेट वाइज आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे जो प्रॉब्लम है उनके साथ हम शेयर कर दे सकते हैं। हाँ, ये आई थिंक आपका अच्छा सॉल्यूशन है और यही मैंने पहले बताया था। आप एक ऐसा कोई फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए स्टेशन के पास जिसकी वो हेल्प ले सकें। ये मैंने पहले भी बोला था। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ सजेशन भी दें कि उसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए। अगर सॉल्यूशन यहीं से आ जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इजी सॉल्यूशंस तो हमें वही होंगे जो आप लोग बताएंगे। किसी ने फेस किया होगा वो बताए कि मेरा ये प्रॉब्लम था, मैंने इस तरह से सॉल्व किया। सर मैं ललित लोकवाणी से हूँ और खासकर जो है ट्रांसमीटर के बारे में सवाल है, क्योंकि सारे उपकरण जो है स्टूडियो के जो है हम लोग लोकल रिपेयर करवा सकते हैं, लेकिन ट्रांसमीटर हुआ, केबल हुआ और एंटीना हुआ, जिसके लिए हमें उसी कंपनी को देखना पड़ता है दिल्ली लेवल पे, जो कि हमारे दिल्ली पास पड़ता है। तो दिल्ली में कोई ऐसी ओपन मतलब है जहाँ पे हम लोग अपना ये रिपेयर करवा मतलब ट्रांसमीटर बनाए हैं, छोटे छोटे बना देते हो 1-2 किलोमीटर का काम करते थे। लेकिन क्या होता है पार्ट्स की समस्या आती है, जिस ट्रांसमीटर में जो पार्ट्स लगा हुआ है वो पार्ट्स आसानी से ओपन मार्केट में नहीं मिलता है। तो समस्या वही है सर, अगर हम जो भी ले कोई सुधारने वाला तो पार्ट्स नहीं मिलता है। हाँ, ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट मार्केट में तो वैसे रिपेयर करने वाले नहीं मिलेंगे। बट अभी जो हमारी स्कीम आई है उसमें हमने इनोवेशंस भी रखे हैं। अगर ऐसा कोई आप किसी को आपकी नॉलेज में है जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ऐसे इनोवेशंस कुछ सजेस्ट कर सकता है, तो उस स्कीम में हम इनोवेशन फंड फ्री हैं, उसको हेल्प भी की जा सकती है। तो ये मार्केट में आई थिंक वैसे तो नहीं है। आपका जिस वेंडर से आपने लिया है जनरली तो वही आपको रिपेयर करके देगा। अगर वो मार्केट में करता है तो आपने बताया पार्ट्स की प्रॉब्लम है, तो पार्ट्स या तो वो लार्ज स्केल पर अभी
जहाँ पर एक या दो स्टेशन उसके पास हैं, तो वो फुल टाइम तो ये काम नहीं कर पाएगा। इंजीनियर्स हेल्प कर सकते हैं। Yes, EIR, local EIR can be contacted. 600 किलोमीटर दूर है। नहीं लोकल नेक्स्ट लोकल AIR इंजीनियर्स में हेल्प कर सकते हैं। हम लोगों के यहाँ भी केबल से रिलेटेड एक इशू था, तो हमने लोकल मिलेगी भी नहीं, क्योंकि एक दो बार उन्होंने बात करके देखी होगी, तो वहाँ से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमें हेल्प करेंगे। नहीं, हम बताते हैं इसमें ऐसा है, प्रसार भारती मतलब ऑल इंडिया रेडियो में एक सेल है जो कमर्शियल इस तरीके के एस्पेक्ट को देखता है, तो वो उनका कुछ रेट फिक्स्ड हर चीज के लिए किए गए हैं सर्विस के लिए। अगर उनका इंजीनियर जाएगा तो फिर आपको वो इतना विजिट में 25,000 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं तो ये बताता हूँ कि वो पुणे का आई थिंक इसको हम उसमें टेक्निकल फैसिलिटेशन, जो टेक्निकल फैसिलिटेशन में ये सब पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, टेक्निकल फैसिलिटेशन में आप चाहे बेसिल को रिक्वेस्ट करें या लोकल EIR को, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जो उसको फैसिलिटेट करे। हमको तो लगता है सबसे अच्छा है कंपनी समझ रहा है, उसी से ट्रेनिंग अपने दो लोगों को दिलवा दे। वो तो मैंने आपको बोला ना, आपको हेलो यू कैन डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें कुछ पॉलिसी डिसीजन हो रहा है, ठीक है, तो ट्राई को रेफर किया हुआ है, बट आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रांसफर, वो आपका स्टेशन ऑपरेट कर रहे हैं। एक सेकंड, आप I am from Nagapattinam, coastal place, Tamil Nadu, and the problem what we found is the cable within the antenna is small, so small that it goes off even whether it is soldering or screwed, whatever it may be. Is there no other solution or is there any other alternate? So that because every time the mast during the wind season it is not possible to take the mastman up, and during the monsoon also it will rain like anything and he cannot take the risk. We face this problem again. So that means he is not connecting it properly. See, the cable has to be mounted. It should not put any pressure on whatever connection you are giving. Within the antenna, the small element where it gets disconnected. No, that is what I am saying. So it will not be mounted properly. That's why that break is there. Or due to large wind, only it can break. It should not break like that. It should not happen. He is not mounting it properly. Wind is there. It is open and it is. No, still it should not happen. See, he should fix it with the so that cable should not get moved. It is not the problem with the antenna cable. I am telling about within the antenna element there is a cable that connects with the antenna. In that the corrosion and disconnection happens. connection between antenna and cable. No, that only I am telling. So that whatever that is there, that also has to be mounted properly. I think it is because of unskilled manpower. So आपका जो workmanship है वो Yes, sir. ठीक है सर, आप जैसी बात है सर। का बिल और रेट भी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती। नहीं, रेट की नहीं है, एक ऐसी एजेंसी हो। हाँ, वो हम बात कर रहे हैं ना, फैसिलिटेशन। आपका एक ऐसा फैसिलिटेशन कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हो, आपको बता सके कहाँ पर बेटर सर्विस मिलेगी, आपका एक्चुअल फॉल्ट कहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब जैसे गाइडेंस आपको दे देंगे। बस अब जैसे अभी ये बड़ा माकूल सवाल था ऑल इंडिया रेडियो के। Okay, I'm Shamanta from Sarathi Jala, Karnataka, and our final stage, and they say that you could have informed and you could have discussed with us in the earlier stage like that. Of course, you people have come. I don't know what to say. They are not at all cooperative. That I really. No, let me explain that. See, there are too many issues. One issue is
there is again in all India Radio shortage of people. See, the stations, whatever they were there in the last maybe 2-3 years, in my presence when I was heading the whole organization, technical person, we have added hundreds of stations, FM stations. All over the country, there is a lot of political pressure, lot of news stations. Every minister wants my constituency news station. So staff is not recruited. So they are facing one district. Second is, as I told, if you get it done officially, then they will have to get permission from here at what rate they will be getting this work done. And after approval only they will do it. The third method is, yes, automatically you have some good relations with some people and they can do it. Unofficially. Maybe, that is the only method possible. Actually, for engineers, it's not it's an opportunity for engineers to have more community radio. For program people, it may be a challenge. Okay, community radio for technical people, it's an opportunity. But it depends on individual to individual because it's not their part of job. So they will be thinking, why should I go there? So, but if it is addressed officially, I think we can try to find out some solutions. Yes, sir. You provide us some telephone counseling. Next. Sir, I'm Revati won't help you, like, frankly they said. And one more thing, sir, we got the advertisement of the paper, last 2nd and 9th also, including that yesterday what ma'am said. And before the week, actually, we purchased the things, very important things for standby and all. So, how we apply again same that thing, otherwise, shall we? After in principle approval. And because very big thing, we actually transferred the standby. If you have already purchased, they want to be funded. Okay, sir. Okay. Yeah. So, you will submit the application, you will get in principle approval. Only after that you have to purchase. You will be reimbursed only for the equipment which you will purchase after approval. After approval, which is only 50% of the application. No, just we got doubt. Okay, thank you. Next. Only for tower, not for your studio equipment. It will be there as it is now. Yeah. So only the tower and antenna we shift to some other nearest building. It's the first issue which came, change of location. It's a change of location. That is already. No, not the location of the studio. Not studio location means where your antenna is set up. Your location of your community radio is where you from where you are broadcasting, where your antenna mast has been erected. That is your location. See, always a transmitter, when you get the SACPA clearance, the coordinates of your the antenna is most important. Even transmitter you can have at different locations. No, now there is not a problem. Now we have the problem of signal strength. That is the thing. So that's why. No, whatever may be there, whatever reason may be there for shifting of your antenna. If you are shifting your antenna from A location to B location, you have to get the permission. Because SACPA clearance is for particular location. From all the departments, from where we are. WBC. WBC. ये हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ तो वहाँ 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का गांव है तो वहाँ के लोग नहीं सुनते हैं। एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट जिला शिवपुरी में आता है वहाँ के लोग सुनते हैं। कंपनी का है आपका हिल है क्या? हाँ हिल है। तो इसीलिए वो नहीं जाएगा। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? लोकेशन आपका साइट प्रॉपर सिलेक्ट अगर आप प्रॉपर लोकेशन लेंगे कि कहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसके अनुसार साइट सिलेक्ट। मतलब कि हमारे जो लिसनर है हमारे तहसील के अलावा अन्य तहसीलों के हैं। सर हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ कोई हिली एरिया नहीं है तो हमारे यहाँ भी ऐसा है कि 4 किलोमीटर पे बिल्कुल नहीं सुन सकते और 25-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर से फोन आता है, बिल्कुल साफ सुनते हैं उसी डायरेक्शन में। नहीं फिर एंटेना का प्रॉब्लम होगा, आपका एंटेना का प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली सर मेरा सजेशन ये था कि जब हम लोग रेडियो स्टेशन लगाते हैं तो हमारे पास जो भी कंपनी का जो भी आते हैं लगाने के लिए वो लोग टेस्ट करके और वो बता देते हैं हाँ आपका प्रॉपर जा रहा है। हमें तो पता नहीं होता कि प्रॉपर जा भी रहा है उस समय जिस समय उन्होंने इंस्टॉल किया है कि नहीं जा वो मैंने पहले सजेशन दिया था, उससे हम फील्ड स्ट्रेंथ उसका वो मेजर करके थे हमारे को चारों डायरेक्शन में आपका कहां तक आपकी कितनी स्ट्रेंथ जा रही है। ये अगर आप ट्रांसमीटर परचेज करते हैं उसी टाइम उसके साथ ही एग्रीमेंट करें, आप
सेटअप करेंगे और हमें मेजर करके देंगे कि किस डायरेक्शन में कितना जा रहा है। इसके लिए 2-3 मेथड है कि आपकी पावर सही जा रही है कि नहीं। एक तो है कि आप ट्रांसमीटर की पावर मीटर से जस्ट देखते हैं, वो कैलिब्रेटेड होती है। दूसरा होता है कि आप पावर मीटर एक आता है, वो उसके थ्रू देखते हैं, वो एक्चुअल मीटर पावर ट्रांसमीटर का देखते हैं। लेकिन उसके बाद एंटेना का क्या रोल है और आपकी केबल का क्या रोल है, उसका असर होता है कि आपका कितना रेडियस कवर हो रहा है। जब आप नया ट्रांसमीटर लगाते हैं तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि लगाने के बाद आप उसकी मे बी 4 डायरेक्शन में या 8 डायरेक्शन में ऐसे उसका देखें कि कहां तक आपको सिग्नल सही मिल रहा है। वो सिग्नल भी आप 2 तरीके से चेक करते हैं। एक तो आप अपने ट्रांजिस्टर में ही सिंपल देख लीजिएगा कि कितना एरिया कवर हो रहा है। दूसरा जो एक्चुअल टेक्निकल मेथड होता है, मीटर आता है, फिल्स्टन मीटर, जिसको अभी वो बहुत कॉस्टली होता है। तो वो हो सकता है कि कल को सेंट्रल लेवल पे कहीं रखा जाए, अगर आपको जरूरत हो तो मुहैया किया जाए। वो रीडिंग जो होता है इंटरनेशनल लेवल पे उसका एक स्टैंडर्ड रखा गया है कि एफएम का जो सिग्नल है, अगर 60 डीबी माइक्रोवोल्ट एक ऐसा वैल्यूज है, तो एफएम अगर स्टीरियो है तो इतना है, अगर मोनो है तो इतना है, तो वो वैल्यूज कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि आपका ट्रांजिस्टर या आपका मोबाइल कितना सिग्नल रिसीव कर सकता है उसकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। तो वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखे गए हैं, तो उस मीटर से आप एक्चुअल रीड कर सकते हैं। सर ये अगर मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है तो बहुत अच्छा। इसके बारे में ये पहले ही नोट कर चुके हैं, ठीक है सर। एक चीज और पूछना था कि चंदेरी में जो क्यों करना था, मतलब क्या होता है लिसनर भाई, लोग वो तो सॉन्ग सुना रहे हैं, ये सुना रहे हैं, वो सुना रहे हैं। पहले ही बताई कि जब हम ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन लगाते हैं, एक लोकेशन सिलेक्ट की जाती है कि कहां से आप मैक्सिमम सिग्नल कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने वो हिल को दिया होगा। आपको मैं कोडाईकनाल का इंसिडेंट बताता हूँ। कोडाईकनाल स्टेशन जो है 10 किलोवाट ट्रांसमीटर है, वो लगभग इतना एरिया कवर कर रहा है कि आपके कई स्टेट्स में मिल रहा है। तो दैट वे इट हैज टू बी सिलेक्टेड। के पास बहुत रिसोर्सेज है, वो स्टूडियो और ट्रांसमीटर अलग अलग रख सकते हैं। अगर आप ऐसे रखेंगे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कम्युनिटी रेडियो और एआईआर का कोई कंपटीशन आपस में नहीं। ये मैं तो ये कहूंगा, एआईआर कैन नॉट कम्पीट विद यू बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट। एआईआर तो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो आप उस एंगल से मत देखिए, ठीक है। No, sir, we don't take that, but they are seeing that. Other way how? Ashish from Gailipur CR, sir. Hello sir, I am Abhijit Das from Radio 91 sir. Operating from Hilo 1. outside noise is coming. Either there will be some opening, sometimes what happens, sound जो है, even if some cable is entering in your studio, through that also that noise may come. उसको एयर टाइट आपको करना होगा। जी जी जी। साउंड प्रूफिंग, साउंड लॉकिंग, आउटसाइड नॉइज should not enter. उसका डोर देखना है, डोर के ऊपर रबड़ का लाइनिंग हो जाता है, आवाज आती है। We are having a transmitter of 50 watts, and even though we are having a transmitter of 50 watts, our antenna is not providing 50 watts. Due to some losses. So, as per the guidelines of over here, they have mentioned that transmission power should be 50. I hope not the transmitter rated power. 100 watts. Yes, sir. So based upon that, whether we can upgrade our transmitter such that we are having the antenna power 50. So you are confused. See, the thing is, your transmitter cannot have more than 50 watt power, and the radiated power due to gain of the antenna, you can go up to 100 watt. Transmitter power cannot be increased.
but antenna gives a gain of maybe 5 dB, 4 dB, so you are able to give more power for radiation purpose. So, but you cannot increase the power of transmitter. See, theoretically, what policy says, your power should not exceed 100 watt ERP. If your antenna gain is say not 3 dB, you can have transmitter, but you won't get permission because WPC will not allow you. Because tomorrow you may put an antenna with 3 dB gain, then your power will be 200 watt. So theoretically it's possible. What you are saying is okay, but I think there will be other issues which will come in. मैं सुरेश कुमार झारखंड के हम लोग कम्युनिटी रेडियो में बहुत ज़्यादा उपलब्धि किए, लेकिन टावर और ट्रांसमिशन जो तूफान से हम लोग का टूट गया, क्योंकि 2 साल पहले टूट गया। और सवाल यह होता है कि जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से दोनों जो ट्रांसमीटर टावर होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसको तैयार नहीं होता है इंजीनियर का बिना रिपोर्ट आके। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ट्रांसमीटर जो पूरा टावर खत्म हो गया, फिर अगेन हम लोग क्या करें, जो फिर पुनः इंश्योरेंस कंपनी भी लेने के लिए तैयार, चूँकि झारखंड का स्थिति ऐसा है कि तूफान से ज़्यादा प्रभावित होता है। टावर टूटा कि ट्रांसमीटर दोनों देखिए, अगर आप हमारी जो स्पेसिफिकेशन है हुआ तो तूफान में पूरा ट्रांसमीटर नीचे वाला नहीं, ऊपर जो जो हमने स्पेसिफिकेशन दी है अभी कम्युनिटी रेडियो सपोर्ट स्कीम के लिए, उसमें इसलिए 2-3 चीजें ऐड की गई है। एक तो ये एंटेना के लिए, टावर के लिए कंक्रीट टावर का भी उसमें स्पेसिफिकेशन रखा गया है, क्योंकि थोड़ा कॉस्ट तो बढ़ सकता है, लेकिन आपके एरियाज के लिए जहां बहुत हाई विंड वेलोसिटी होता है, तूफान आता है, उनमें वो विथस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा है, जैसे ही हमने वो पावर सप्लाई का रखा है कि पावर सप्लाई जहां रिमोट एरिया में नहीं मिल सकती है, इवन आप सोलर पावर का भी सिस्टम उसमें रखा है। ये सब इसीलिए रखा गया है कि रिमोट एरिया में या जहां ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग वो भी खरीद सकते। ठीक है सोलर। मैं बेबी राजा रेडियो दर्शन शिवपुरी से, मध्य प्रदेश से। उससे लेके अभी तक हमने 2 बार ट्रांसमीटर को रिपेयर करा लिया। बेबल का ट्रांसमीटर है, बट जब हम रिपेयर कराते हैं तो 2-3 महीने बहुत अच्छे से चलता है, लगभग 15, 16 या 20 किलोमीटर तक रेंज जाती है। बट जैसे जैसे 3 महीने के बाद और समय बीतता जाता है, वो 5 और 4 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका तो कारण यही है कि उसकी पावर जो है वो कम होती है। फिर किस वजह से कम होती है? या तो हीट की वजह से होती है, या उसका ओवरहेड जो है वो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा वो रिपेयर जब करके गए हैं क्या चीज रिपेयर इसके लिए गाइडलाइंस हो, इसके लिए कुछ ऐसा कुछ राइटअप हो, थोड़ा सा ट्रांसमीटर के बारे में, एंटीना के बारे में, केबल के बारे में, ज्यादा टेक्निकल ना हो कि आपको किस चीज का क्या क्या ध्यान रखना है। तो मेन इशू है जो मैं सोच रहा था, अभी वो इशू नहीं आए जो सबके लिए हेल्पफुल होंगे, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इजी सॉल्यूशन जो नहीं आए हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे सारी पीछे काम। That is what I am saying is standard are there. So what is the standard? I think मोनो के लिए 48 है, I think अभी जो हमने WPC के साथ डिस्कस किया। That's an ITU 1998 का recommendation 48 है, but is it higher for stereo? No, it's for mono. अच्छा, is it lower for stereo? It's more for I think 6 dB more is there. 52 is for mono and 48 for stereo. So is that also the WPC standard? Yeah, WPC is for ITU. Because मैं क्यों पूछ रहा हूँ, हमने सिग्नल स्ट्रेंथ टेस्टिंग किया है 6 रेडियो स्टेशन दिल्ली में और 2 किलोमीटर पर भी 48 नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ऑफिशियल जिसका आपने किया वो मैं भी सुन रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन वो उसकी प्रॉब्लम्स अदर हैं, हमने वो ठीक भी किया था, तो केबल का भी उसका है लगा था, केबल भी वो प्रॉपर नहीं है, एंटेना का गेन भी कम है, ट्रांसमीटर का भी पावर मालूम नहीं कि एक्चुअली कितना दे रहा है, वो सब फैक्टर देखने वाले। 50 के अंदर है ना देगा ट्रांसमीटर। तो नेक्स्ट मेरा 50 ऊपर तो जाएगा। और कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस गाइडलाइंस। हाँ वही
वही मैं कह रहा था, जो इश्यूज हैं वो नहीं आए, इसलिए मैं कुछ इश्यूज आप में से कितने लोग रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं? कोई आपका शेड्यूल है, एक वीक में, 10 डेज में, 15 डेज में हम ये और उसके लिए जो मेंटेनेंस नहीं चाहिए तो मास ट्रांसमिटिंग होना चाहिए। तो we are not getting the mass ट्रांसमिटिंग, we are asking for the they are already using for the years also। आई थिंक एक तो सबको रेगुलर एक मेंटेनेंस शेड्यूल बनाना चाहिए, जो मेंटेनेंस जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, बट इजी सॉल्यूशन नहीं होगा, बट कुछ इजी थिंग्स हैं जो आप करेंगे तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आपकी बहुत सारी कम हो जाएंगी। जी, ठीक है। इसमें एक रेगुलर मेंटेनेंस आपको, जैसे अगर आप मोबाइल परचेज करते हैं, दूसरे मोबाइल परचेज करते हैं, आप इमीडिएटली स्क्रीन गार्ड लगाते हैं उसमें, ये एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ठीक है, ताकि उसका स्क्रीन वेयर एंड टियर ना हो, पीछे कवर लगाते हैं, गिर जाए तो डैमेज ना हो। तो इसी तरह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो करनी है सबको, उसका एक कुछ फ्लो चार्ट्स और ये सब आई थिंक उसमें ट्रांसमीटर में लगाने चाहिए, और वो प्रोसीजर आई थिंक वीडियो से या लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाए, बिकॉज कम्युनिटी या कोई आपका स्टाफ या आई थिंक पढ़ना बहुत मुश्किल है, नोबडी लाइक्स टू रीड। हाँ सर। तो उसको कोई इसी तरीके से बता दिया जाए वीडियो से, जैसे आपको ट्रांसमीटर कैसे क्लीन करना है, उसको डस्ट और हीट ट्रांसमीटर के लिए बिगेस्ट एनिमी है, अगर इन दो चीजों से बताया जाए तो उसकी लाइफ बढ़ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो सकती है। तो वो मेरा सजेशन ये है कि उसका कुछ वीडियोस या कुछ सिंपल चार्ट लोकल लैंग्वेज में अगर डिस्प्ले किया जाए तो उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आपका स्टाफ चेंज होता है या कोई आपका वॉलंटियर चेंज होता है तो उसके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। एक तो we want to do, we need to get the cooperation from that भी तो हो जाता है, ट्रांसमीटर में पंखा नहीं दूसरा ये था डॉक्यूमेंटेशन, कितने लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, आपके किस इक्विपमेंट में या ट्रांसमीटर में क्या फॉल्ट आया, कोई डॉक्यूमेंटेशन करता है, कोई लॉगिंग करता है। तो एक लॉगिंग मस्ट है हर एक इक्विपमेंट का, आप एक रजिस्टर ओपन कर लीजिए, उसमें हर इक्विपमेंट के लिए 4 पेज 5 पेज रख लीजिए, जैसे ही कोई फॉल्ट आता है आप उस फॉल्ट को उसके ऊपर काम करेंगे, रिमूव करेंगे, पहले ट्रांसमिशन रिस्टोर करेंगे, फिर उसका एक लॉगबुक लॉगिंग करके ये फॉल्ट आया था, ये एक्शन लिया गया, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वो स्टाफ चेंज होता है, ठीक है, और कोई नया स्टाफ ज्वाइन करता है तो उसको एक तो इक्विपमेंट की हिस्ट्री मालूम होगी, एक दूसरा उसको ये पता लग जाएगा ये फॉल्ट आया था पास में, ये उसका रेमेडी थी, तो उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। EIR में ये रेगुलरली किया जाता है, ठीक है। Is it necessary that the person who is maintaining the antenna on the tower should be the mass technician only? या एज पर नाउ वो मास टेक्नीशियन होना चाहिए, उसके पास हाइट पर चढ़ने का लाइसेंस होना चाहिए। ये तो ना खोजा जाएगा तो पहले टावर पर का एंटीना नहीं बन रहा है, हफ्ता में 2 दिन चलते हैं। आई एम नॉट श्योर 30 मीटर के लिए चाहिए, देखिए 30 मीटर के तो इलेक्ट्रिसिटी के टावर भी होते हैं, इसमें हम कुछ शायद ऐड कर सकते हैं। मेरा सुझाव ये है, पहले बढ़ाओ, जिस तरह जहाँ जहाँ कम्युनिटी रेडियो लगे हैं वो अगर आप देखोगे तो ये दुनिया की किसी कंपनी के ताकत में नहीं है कि वो इमीडिएटली कोई टेक्नीशियन को पास है। तो मेरा सुझाव ये है पहले तो कि अगर जहाँ भी आप कम्युनिटी रेडियो लगा रहे हो, अपने 2-3 बच्चों को इस तरह तैयार करो कि 70-80% काम तो वो कर ले। अच्छा, अभी दूसरी बात ये है कि उसके लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, तो अभी जो स्कीम बनी है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि आप जो ट्रांसमीटर खरीदोगे उसमें एक कंडीशन ये आनी चाहिए कि वो जो कंपनी है वो पूरी तरह आपके लोगों को ट्रेनिंग दे। तो ये बहुत जरूरी है, मुझे खुशी हो रही है कि ये हमारे उसमें आया है। तीसरी बात ये है कि अभी बेसिल और सेमका ने मिलके एक किट बनाई है जिसमें काफ़ी कुछ ट्रांसमीटर मेंटेनेंस के बारे में, ट्रांसमीटर के ऑपरेशन के बारे में काफ़ी कुछ वीडियो के माध्यम से बताया गया है। आप उसको भी स्टडी करें, और अपनी जब तक कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक ये सब सवाल बने ही रहेंगे। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप बेसिल को हो या तो मैं एक दिन में 24 घंटे में नहीं पहुंचने वाला है। सर इसमें लेकिन रिवर्ट हमें ये मिलता है कंपनी से, वो कहते हैं अगर आपने हाथ लगाया मशीन खोली तो वारंटी देने वाला था कि ट्रांसमीटर को तो ब्लैक बॉक्स समझिए, उसको आप मत छेड़िएगा,
सिर्फ जो 3 चीजें जो मैंने पहले भी जी, आपको बताई थी, एक तो आप पावर सप्लाई उसका प्रॉपर दीजिए, वो ट्रांजिएंट जो होते हैं वो बार बार ऑन ऑफ करने से और से वो खराब होता है ट्रांसमीटर। दूसरा है कि आप उसका कूलिंग करिए, अगर आप उसमें एसी लगा सकते हैं, सिर्फ उतना ही एक एनक्लोजर करके छोटा सा में भी आधे टन का ही एसी लगा दें, तो अगर उसका टेम्परेचर 20-22 डिग्री के लगभग रहेगा तो आप ये समझिएगा उसकी लाइफ 10 गुना बढ़ गई। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था डस्ट, जब आप बंद कर देंगे उसका आमतौर पे किसी को अंदर जाने की ही जरूरत नहीं है, समझे नहीं, आप किसी को एंटर करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मीटर है वो कभी देखना है तो देख सकते हैं, अदरवाइज सब बाहर आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कवरेज एरिया कितना है। तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो अभी इनसे FTI पुणे से बात कर रहा था, तो मैं उनसे पूछ रहा था, क्योंकि आज से लगभग 6-8 साल पहले हमने लगवाया था, मैंने खुद ही अपने आदमी भेज के, आज तक कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे ये प्रॉब्लम आ सकती है? या तो वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल है या इन चीजों की प्रॉब्लम है। सर हमें जो कंपनियां प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं, तो जब प्रोवाइड करती तब तो हमसे पैसा ले लेती हैं और बढ़िया हंस बोल के हमें दे जाती हैं। आफ्टर सेल सर्विस जो नहीं मिलती है, क्या अगर हम मिनिस्ट्री को उस कंपनी की शिकायत करें तो क्या मिनिस्ट्री हमारे लिए मदद करेगी कि उन पे एक्शन ले, उनको हमारी तरफ से जागो ग्राहक भी तो उनको कुछ नहीं दे सकती है, बिकॉज वो तो इस रेगुलेशन के अंदर आते हैं, वो तो चीटिंग का एक केस हो गया एक तरह से। वो सर आफ्टर सेल सर्विस से बहुत परेशान है सर। आफ्टर सेल सर्विस इट इज स्टेशंस नेटवर्क करके और वो करके एक और मेरा सजेशन था, इतने स्टेशन ऐसे हैं जो आपस में स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग सेशंस, लर्निंग विद इन ईच फ्रॉम ईच अदर। आपके अगर स्टेशंस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में एक्चुअली एवरी पर्सन शुड बी एबल टू डू एवरी वर्क, ठीक है, सिर्फ स्टाफ ही नहीं, आपके वॉलंटियर्स और कम्युनिटी मेंबर्स भी इंक्लूडिंग वुमेन। सर ऑपरेशनल No, sir, actually everyone- कुछ जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो सब दे शुड बी एबल टू डू दैट। तो मेरा एक सजेशन ये भी है, मंथली या फोर्टनाइटली आपस में एक सेशन किया जाए जो आपस में डिस्कस करें, एक्सपीरियंस शेयर करें, उसमें कोई अगर टेक्निकली साउंड है, कोई प्रोग्रामिंग साउंड है, सो दे कैन टीच ईच अदर। एक मंथली अगर आप रख लेंगे, एक उसको असाइन कर देंगे, आज आप टेक्निकल लेक्चर आप देंगे, तो उसकी जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है वो उसको कैसे सॉल्व करता है वो शेयर कर सकता है। नेक्स्ट में आप जो अदर पर्सन है कंटेंट में स्ट्रॉन्ग है उसको आप बोल सकते हैं। तो ये लर्निंग फ्रॉम ईच अदर एक सजेशन ये है। दूसरा ये है पीयर टू पीयर लर्निंग। स्टेशंस, कुछ स्टेशंस होंगे जिनके पास अच्छा टेक्निकल स्टाफ है, वो दूसरे स्टेशंस को गाइडेंस दे सकता है। जैसे सेंट्रल लोकेशन की तो हम बात कर रहे हैं, बट सब कुछ सेंट्रल से नहीं होगा। जब तक, जैसे हेमंत ने कहा, जब तक आप अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। अपना हाथ जलाना। तो एक रीजन में अगर 4 स्टेशन है, 5 स्टेशन है, जैसे महाराष्ट्र का मेरे को पता चला, उनका एक नेटवर्क है, वो हर साल एक कम से कम एक बार प्लेटफॉर्म पर आते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो पीयर टू पीयर लर्निंग ये भी एक मेरा सजेशन है कि स्टेशन एक रीजन में 4 या 5 का एक नेटवर्क बनाएं और एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर करें। नहीं, कुछ कॉमन प्रॉब्लम है प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस के लिए सिमका की तरफ से गाइडलाइन आ जाए, वरना तो अपनी मक्खियां खुद ही हटानी पड़ेंगी। बहुत अच्छी बात आपने रखी सर। हाँ, अच्छा, ये आप बताए थे कि ट्रांसमीटर को बार बार बंद करना और चालू करना नहीं है, ठीक है। और कोई छूट गया तो बोलो। रेडियो के ट्रांसमीटर को हमने यहाँ इंस्ट्रक्शन दे दी कि 24 घंटे ऑन रहने, कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट लिखनी है जी, तो उसको चालू रखा जाए 24 घंटा। एक्चुअली प्रीवियस सेशन से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जितना ऑन ऑफ करते हैं उतना उसमें ज्यादा ट्रांजिट आता जी। हमारा फ्रीक्वेंसी दिया है 91.2। 91 में रेडियो सिटी सुनाता है, 91.1 में रेडियो सिटी सुनाता है। तो आपका वो फ्लैश है, ठीक है, ये लोकेशन फ्रीक्वेंसी आ रहा है। कैन यू रिपीट सर? 91.2 है सर, ये 91.2 है आपका। and 91.2 you listen to Radio City, or 91 you listen yes, to Radio because City.
रेडियो सिटीज ट्रांसमीटर इज वेरी पावरफुल, वो आपके कम्युनिटी रेडियो को नहीं सुनने देगा। नहीं, उसमें देखिएगा वो उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है रेडियो सिटी की। Ours is 91.2 and they 91.1. नहीं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा? नहीं, उनका 91.1. See, the thing is, they are over modulating. आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके, वो क्या है, वो सिग्नल जो है में लिखिए आपको इंटरफेरेंस आ रही है, कि इंटरफेरेंस आ रहा है। That is the best. No, but can you say I shift fighting with such people? Can I shift to another frequency? कोई सजेशन हो कुछ हो? कोई There should be guidelines for change of location. ठीक है, अभी तक कोई केस ऐसा नहीं आया जिसने चेंज ऑफ लोकेशन जिसको अलाउ किया। So what should be the procedure for change of location? ठीक है।